Hello students, welcome to next lecture, lecture number 9 of chapter 2nd polynomials class 9th mathematics. You are most welcome and here we will solve exercise 2.3. Yesterday, as you know, we have already solved some questions from 2.3. I hope you watched the video and understand and solved many questions belongs to the video and your book. So students, here we will use remainder theorem to find direct remainder. Question is, find the remainder when x cube minus x square plus 6x minus a is divided by x minus a. So students, we have the polynomial and we have this divisor. We have to divide. So first of all, we have x minus a is equal to 0, where x is equal to a. So this is the value of x. Now write polynomial. We can write here x cube minus ax square plus 6x minus a. So remainder, R for remainder, putting a in place of x, a cube minus a into a square plus 6 into a minus a. It becomes a cube here, a cube plus 6a minus a students here. Both are cancelled out. So finally remainder will be 5a. So this is your answer students. So by this way students, we have solved this. So our remainder is 5a. So question number 2nd over. Now student, we have next question, question number 3rd. We have to check whether 7 plus 3x is a factor of this or not. तो when we divide students and if remainder is 0, divide करने के बाद अगर remainder 0 हो, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे रिमाइंडर आया है, अगर ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती तो हम कह सकते थे कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ रिमाइंडर इज 0. सिमिलरली इसमें कहा गया है कि 7 प्लस 3x इज रिमाइंडर और नॉट. वी हैव टू क्लैरिफाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इक्वेट 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल. इफ रिमाइंडर इज 0, देन वी कैन से 7 minus 3x is a factor of polynomial, otherwise not. So here student, we have divisor, that is 7 plus 3x is equal to 0. So 3x is equal to minus 7 and x is equal to minus 7 upon 3. So students, see here, this is the value of x. Now we have polynomial 3x cube plus 7x. We want to find remainder, R for remainder. Putting the value of x here, 3 minus 7 upon 3 square cube plus 7 into minus 7 upon 3. Students, here we can solve it. 3 into 7 cube. 7 cube means student 49 into 7. 343. So here students, minus 343 upon 27, because 3 cube 27. Here students, minus 49 upon 3. 3 9 ja 27. So we can write here student minus 343 upon 9 minus 49 upon 3. Students, from this value we can say that there is no case in which we find a remainder 0. आगे इसको आप सॉल्व करेंगे, हमें 0 नहीं मिलेगा. जब 0 नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं, we can say that since remainder is not 0, so 7 plus 3x is not a factor of this polynomial. तो स्टूडेंट्स आपको लिखना पड़ेगा, प्लीज राइट दिस स्टेटमेंट
एंड यू कैन सॉल्व फर्दर, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, और लास्ट में जब जीरो नहीं मिलेगा तो आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो सो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स हियर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। स्टूडेंट्स ये एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4, और इसमें हमें 1 2 3 4 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में, और हमें क्या करना है, डिटरमाइन which of the following polynomials has x + 1 as a factor। in each part of this question we have to क्या करना है, वेरीफाई दैट x + 1 इज ए फैक्टर और x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। तो हमें इस हर पार्ट में क्लियर करना है कि x + 1 किसका फैक्टर है या किसका नहीं है। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कम हियर एंड कम टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। वी हैव x + 1, that is x + 1 is equal to 0, so x is equal to -1। यू नो स्टूडेंट्स, जो डिवाइजर होता है उसे हम इज इक्वल टू 0 करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। अब उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में 1 बाय 1 पुट करेंगे, देन पता चलेगा कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। इफ रिमाइंडर 0, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो x + 1 फैक्टर होगा। फर्स्ट पार्ट, वी हैव पॉलिनोमियल x³ + x² + x + 1। नाउ पुटिंग x is equal to -1, तो we have remainder here is equal to -1³ plus -1² plus -1 and +1। स्टूडेंट्स सी हियर, जहाँ भी x है वहाँ हमने क्या किया, -1 पुट किया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। आप देखिए -1 का होल क्यूब इट बिकम्स -1, -1² ये ऑड है, अगर जब भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड होगा तो वो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव नंबर का पावर जब भी इवन होगा तो वो पॉजिटिव आएगा। एंड हियर प्लस इंटू माइनस -1 एंड लास्ट वन इज +1। सी हियर -1 +1 कैंसिल आउट, -1 +1 कैंसिल आउट। हियर इट इज क्लियर दैट रिमाइंडर इज 0। तो आप लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इज 0, so x + 1 is a factor of polynomial x³ + x² + x + 1 स्टूडेंट्स। तो बाय दिस वे, इस ढंग से आप इसको इस पार्ट को टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सी हियर आई हैव सॉल्व दिस, नाउ यू विल सॉल्व दिस एज ए होमवर्क and similarly same you will solve this as a homework, but this last part I will try to solve this now। take notes और इसको आप लिखिए तब तक। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन। तो हाय स्टूडेंट्स, तो दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम क्वेश्चन, डिटरमाइन which of the following polynomials has x + 1 as a factor। we have this polynomial and you know we have x + 1 is equal to 0, so x is equal to -1। now we have polynomial x³ - x² -2 plus √2 x plus √2। now students we put the value of x as -1 here। okay, now we can write here remainder is equal to -1³ students here -1 whole cube minus -1² -2 plus √2। now put here as a multiplication -1, here there is a multiplication between 2 plus √2 and -1, last one is
plus root 2. And students, here minus 1 cube, as you know, it becomes minus 1, minus, and minus 1 square become plus 1, and here this minus and that minus it becomes plus 2 plus root 2. स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और लास्ट में आपका है प्लस रूट 2. अब आप देखिए हियर दोनों मिला के माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2. आप देखें ये कैंसिल आउट दोनों, प्लस 2 एंड माइनस 2. वी हैव 2 रूट 2. तो स्टूडेंट्स, हियर इट इज वेरी क्लियर दैट वी हैव नॉट जीरो. क्या आया रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 2 रूट 2. जब हमने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट किया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो क्या रिमाइंडर आया है? 2 रूट 2. इट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट जीरो. सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ लास्ट पॉलिनोमियल. आप यहां लिख सकते हैं हियर रिमाइंडर इज नॉट जीरो. So x plus 1 is, this x plus 1 is not a factor of given polynomial. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार बाय दिस वे यू कैन फाइंड या you can verify the given divisor, that given divisor x plus 1 is a factor or not. If x plus 1 or any other divisor is a factor, then remainder must be 0, and it is clear here that remainder is not 0. So x plus 1 is not a factor of this polynomial. Okay students? 3. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी आर इन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एंड वी हैव सक्सेसफुली completed 2.3 एंड आई होप यू विल वॉच द वीडियो. आप वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में बताए गए जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन समझने के बाद आप एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे. और केवल नॉट ओनली एनसीईआरटी बुक, हम ये कहना चाहेंगे कि आप आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चंस को भी जरूर ट्राई कीजिए. उसके सारे एग्जाम्पल्स को देखिए और जो एक्सरसाइज है उसको भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए. एंड इसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, सेंड योर क्वेश्चन, योर क्वेरीज इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड सर्टेनली यू विल बी प्रोवाइडेड आंसर टाइमली. आपका जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चंस होगी, वो आपको दिए जाएंगे. और ये हमारा जो एक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिमिटेड है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल बुक में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है. एंड आई थिंक यू शुड डू प्रैक्टिस. एंड उस प्रैक्टिस के लिए कुछ फार्मूले हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एकदम लर्न होना चाहिए. उनमें से 2-3 फार्मूले तो आपने 8th में पढ़ रखा होगा, बट हियर आई वुड लाइक टू राइट, एंड सो यू राइट एंड लर्न, एंड इनकमिंग questions or incoming exercises we will use certainly these formulas. So students, see here some important formulas. Number 1, a plus b whole square. We can write here a square plus b square plus 2ab. Students, you can write this as a square plus 2ab plus b square, but both are correct. Like a square plus 2ab plus b square. Similarly students, next a minus b whole square, you can write this as a square plus b square minus 2ab. And once more, a square minus b square is a plus b and a minus b. So students, remember these are the basic formulas which I think you were learned in class 8th also. आपने क्लास 8th में भी लर्न किया होगा या आपको इस्तेमाल किया गया होगा ये फार्मूले. सर्टेनली है क्लास 8th में मैथमेटिक्स में, और कुछ फार्मूलाज भी हैं. तो ये बेसिक है. इनको आप लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. अगर आपको कहीं a प्लस बी, a माइनस बी गिवन है तो आप ये यूज कर सकते हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स, सम मोर फार्मूलाज लाइक a प्लस बी होल क्यूब. इट कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको और भी कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3ab स्क्वायर, या a प्लस बी होल क्यूब, तो बोथ आर सेम। ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड लास्ट में b क्यूब। तो आपको अलग अलग बुक्स में डिफरेंट टाइप से इनका एक्सप्रेशन मिलेगा। तो बट दीज थ्री आर सेम। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब, you can write here a cube minus b cube minus 3ab ब्रैकेट में a minus b। here students इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। रिमेंबर हियर वन टर्म इज पॉजिटिव। एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो दीज आर द सेम फार्मूलाज, डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ सेम फार्मूलाज। ये तीनों अलग अलग एक्सप्रेशन हैं बट फार्मूला सेम है। तो स्टूडेंट्स हियर सिमिलरली आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हियर a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द फर्स्ट, मतलब वी कैन करेक्ट इट, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन राइट a क्यूब माइनस b क्यूब एज a माइनस b एंड इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दीज आर सम फार्मूलाज एंड I hope you will write these and some other formulas are there. So in next lecture we will tell you remaining formulas. With the help of these formula you will factorize or you will expand your questions given NCERT as well as RS Agarwal. So students here I would like to conclude lecture number 9 conclude हो रहा है हमारा, and I hope कि आप इसको देखने के बाद प्रॉपर तरीके से NCERT एंड RS अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा पूछेंगे, अगर आपके समझ में आ गया है और समझ में सर्टेनली आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लाइक आवर चैनल टू गेट अपडेटेड एंड न्यू वीडियोज ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स थैंक्स।